Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my dear students? I hope you all will be fine and will be enjoying good health by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today we are going to read unit number 8. So students, open your books at page number 81 of your English textbook. Here is unit number 8, Stopping by Woods on a Snowy Evening. This unit is a poem. It is written by the famous American poet Robert Frost, who was born in 1874 and died in 1963. He is a well-known American poet. He uses very simple words in his poem. He was an internationally acclaimed poet who won the famous Pulitzer Prize for the fourth time. His poetry focuses on the theme of nature, in which he embedded the contemporary and philosophical issues of his time. His poems are very simple. The words used in his poems are also very charming and appealing to the readers. This simplicity of his diction appeals his reader very much. In a single read, you can understand his poems. So that's why he can be said the poet of man. He died in Boston on January 29, 1963. His other famous poems are Birches After Apple Picking, Mending Wall, Desert Places, Home Burial, The Road Not Taken. I will recommend you to read his most famous poem, The Road Not Taken. Okay, now let's talk about the theme of our today's poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. The poem points out at the attractive and exciting beauty of nature and hints at the need to carry on with the daily affairs of life. He wants to enjoy the beauty of nature and wants to stay there where he has stopped, but he has some obligation, he has some promises which he has to fulfill. He describes that the world of fantasy is very inviting and it is very appealing, but one must maintain balance between the world of reality and imagination. In short, this poem is very beautiful blend of nature, mystery and obligation. The poet wants to enjoy the beautiful scene, but he has some urgent duties that he has to fulfill. This conflict runs throughout the poem. Now let's start the reading of this poem. Now come to the page number 82. Unit number 8, Stopping, ठहरना, by woods, जंगल के करीब, on a snowy evening, एक बर्फानी शाम में, जंगल के करीब एक बर्फानी शाम में ठहरना. The first line of the poem is, Whose woods these are, I think I know. ये जंगल किसका है? मेरा ख्याल है मैं उसे जानता हूँ. Whose इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है. वुड्स जंगल, दीज आर मतलब ये जंगल किसका है. आई थिंक मेरा ख्याल है. आई नो मैं जानता हूँ. हिज हाउस इज़ इन द विलेज दाओ. दाओ मीन गालिबन. हिज हाउस उसका घर है. इन द विलेज गाँव में. गालिबन उसका घर गाँव में है. हुज का लफ्ज़ पोइट ने जंगल के ऑनर के लिए, मालिक के लिए इस्तेमाल किया है. He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ ठहरे हुए नहीं देख पाएगा. To watch his woods fill up with the snow. उसके जंगल को बर्फ़ से ढके हुए देखते हुए वो मुझे यहाँ नहीं देख पाएगा. शायर एक छोटे से जंगल के करीब ठहरता है और वो कहता है कि गालिबन जो इस जंगल का मालिक है वो उसे जानता है. वो करीब ही इसी गांव में रहता है. वो कहता है कि मालिक नहीं जानता कि मैं उसके जंगल के करीब ठहरा हुआ हूँ और उसके बर्फ़ से ढके हुए जंगल को देख रहा हूँ. नाउ सी सेकेंड स्टेंजा. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर. मेरा छोटा घोड़ा यकीनन इसे अजीब समझता है. क्वेयर मीन अजीब. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. कि किसी फार्म हाउस के करीब ना होने के बावजूद भी वो यहाँ क्यों ठहर गया है. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक. जंगल और जमी हुई झील के दरमियान में. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. साल की तारीख तरीन शाम में. शायर कहता है कि इसका घोड़ा इसके जंगल के नज़दीक ठहरने को अजीब ख्याल करता है, जो कि
किसी घर के बगैर यानी किसी फार्म हाउस के बगैर वो यहाँ क्यों ठहर गया है, वो यहाँ ऐसे क्या वजह हुई कि वो यहाँ ठहर गया, जबकि यहाँ तो करीब कोई फार्म हाउस भी नहीं है जहाँ वो रुक सकें और कुछ देर के लिए आराम कर सकें। शायर के इस तरह घने जंगल और जमी हुई झील के दरमियान में ठहर जाने को उसका घोड़ा अजीब ख्याल करता है। वो कहता है कि उसका घोड़ा हैरान है कि उसका मालिक साल की इस तारीख तरीन इस अंधेरी शाम को यहाँ क्यों ठहर गया है, आखिर क्या वजह हुई। He gives his harness bell a shake. ही यहाँ पे उसके लिटिल हॉर्स उस पॉनी हॉर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। He gives वो देता है his harness bell अपने लगाम की घंटियों को a shake एक झटका। To ask पूछने के लिए if there is some mistake क्या कोई गलती हुई है। The only other sounds the sweep दूसरा कोई जो आवाज़ वहाँ है क्योंकि बिल्कुल वीराना है, वो है सिर्फ हवा के चलने की, जैसे साएं साएं की आवाज़ हो। हवा के चलने की आवाज़ को यहाँ स्वीप कहा गया है। ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, ईजी विंड यानी हल्की हल्की सी हवा, एंड डाउनी फ्लेक्स, डाउनी मीन नरम, फ्लेक्स बर्फ़ के गोलों के, यानी बर्फ़ भी हो रही है और हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है, तो उनकी जो आवाज़ है इसके अलावा कोई और आवाज़ वहाँ नहीं है। इस कंप्लीट स्टैंजा में पोइट ये कहना चाहता है कि उसका घोड़ा उससे ये सवाल पूछने के लिए अपनी लगाम की घंटियों को एक झटका देता है कि क्या कोई गलती तो नहीं हो गई कि वो यहाँ ठहर गए हैं, क्योंकि जंगल बहुत वीराना है, सिर्फ हवा के चलने और बर्फ़ के गालों की आवाज़ के अलावा वहाँ कोई आवाज़ ही नहीं है, क्योंकि कोई और वहाँ है ही नहीं। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. जंगल खूबसूरत, घना और तारीख है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे कुछ वादे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले, आराम करने से पहले मुझे मीलों का सफ़र तय करना है। These are very meaningful lines of this poem. These ending lines are, इस पोइम की ये जो आखिरी लाइनें हैं इनका बहुत गहरा मतलब है। कुछ क्रिटिक्स तो इसको यूँ ट्रांसलेट करते हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। द रेपिटिशन ऑल्सो शोज़ दैट देयर इज़ अ डीप मीनिंग इनसाइड इट। कुछ ये ख्याल करते हैं कि वो डे टू डे लाइफ में जैसे रोज़ हम रात को सो जाते हैं, वो उस नींद की बात कर रहा है, लेकिन कुछ ये ख्याल करते हैं कि उसके ये बात कहने का मकसद ये है कि उसे अबदी नींद सोना है, यानी मौत की बात कर रहा है, और मरने से पहले उसके बहुत से वादे हैं जो उसे पूरे करने हैं, लेकिन उसे सोने से पहले मीलों का सफ़र तय करना है। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसका मतलब ये है कि उसे अपने वादे भी पूरे करने हैं, वो यहाँ ठहरना भी चाहता है, जंगल को देखना भी चाहता है, लेकिन उसका फ़र्ज़ उसे ज़्यादा अजीज़ है, इसलिए वो अपना सफ़र दोबारा शुरू कर देता है। अब आप इसकी अगर राइम स्कीम चेक करते हैं तो हर स्टेंजा की अपनी एक डिफरेंट राइम स्कीम है जो कि दूसरे से मुख्तलिफ है। तो बेटा आपने इसको दोबारा अच्छी तरह से पढ़ना भी है और मुश्किल अल्फाज के मायने अपनी बुक पर लिख लेने हैं। दिस वॉज आवर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।